नमस्ते बच्चों। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्पोकन अबाउट रेस्पिरेशन, जहां हमने डिस्कस किया था कहानी एक सांस की। द स्टोरी वाज अबाउट वन ब्रेथ। Okay, if you have not seen that video, you go back to the previous lecture and observe. I have taught you basics of human respiratory system and I have discussed how the breathing mechanism takes place in our body. Now, from the previous lecture, you need to understand that lungs are made up of these tiny balloon-like structures called as alveolus. Now, if you remove all the alveolus from your chest, sir, from our chest? No, not from your chest, from your friend's chest. अपना body खराब करने का नहीं. So you cut open your friend's chest. Open it up. Remove all the alveolus out. And open this alveolus. सारे alveolus को खोल देगा ना, तो कितना surface area occupy करेगा? It occupies the surface area which is 80 meter square. Imagine बेटा, 1 meter is how much? This much. 1 meter 100 centimeter. अभी ऐसा 80 मीटर by 80 मीटर का स्क्वायर बना, कितना बड़ा एरिया होता है मालूम है तुझे? एक फुटबॉल ग्राउंड या फिर एक लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड जितना होता है ना, उतना बड़ा एरिया। यानी हमारे लंग्स के अंदर इतने सारे एल्वियोलस हैं कि हर बलून लाइक स्ट्रक्चर, इमेजिन दिस इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, यू सी दिस बलून, यू ओपन अप द बलून, सो इट इज ऑक्यूपाइंग दिस मच एरिया ना। ऐसे सारे एल्वियोलस को ओपन करेगा ना, तो इट ऑक्यूपाइज 80 मीटर स्क्वायर। इमेजिन आज के महंगाई के जमाने में इतना एरिया हम लोग चेस्ट के अंदर रखा है, ओके, पर कभी घमंड नहीं किया इस बात का। So let's put this point. If alveolar surface is spread out, we will find that it occupies 80 meter square area. So that is the first point for today. Second point, imagine if there was no hemoglobin in your body. अगर तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता। हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन कैरियर। एक्चुअली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। पर अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता और ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से एक जगह से दूसरे जगह जाता, तो उस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर टोज तक पहुंचने के लिए, पैर की उंगली तक पहुंचने के लिए इट वुड टेक अ पीरियड ऑफ 3 years। इमेजिन, हम लोग जो भी ब्रीथ करता है ना, वो ऑक्सीजन हमारे लंग से लेके हमारे टोज तक तुरंत पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके जाता है। बट अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इफ hemoglobin was absent, AB means absent. If hemoglobin was absent, oxygen would be carried by the process of diffusion. And this oxygen would travel from our lungs to our toes, and it would take a period of how many years? 3 years. So imagine hemoglobin का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। ओके, दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें ना बेटा, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट में सिंबल इज HB। ये हीमोग्लोबिन बच्चों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अडल्ट्स, ये याद रखो। और ये हीमोग्लोबिन, दिस इज मोर इन मेन एज कंपेयर टू वुमेन। चिल्ड्रंस, न्यूबॉर्न बेबीज आर नोन टू हैव हायर हीमोग्लोबिन वैल्यू एज कंपेयर टू अडल्ट, because newborn babies, they are at rapid phase of growth, so the cell constantly needs oxygen. In higher language we call it as their metabolism drive is comparatively higher.
Metabolism drive is the ability to break and to make different compounds in our body. And these children, since they require more oxygen for efficient cellular functioning, that is why children have more hemoglobin as compared to adults. Men will have more hemoglobin as compared to women. That depends, because women, they undergo blood loss through a reproductive cycle that is called as menstruation. I will teach you menstruation in a separate lecture when we will talk about human reproduction, where we will understand that female, they bleed through vagina, that is what is called as menstruation. Along with that, the diet of the female and the genetic constitution of the female plays very important role, and even hormones. That is the reason why females में hemoglobin का quantity comparatively कम होता है as compared to males. Alright, so well बच्चों, that's the basic. But what I need to discuss for this particular lecture is, today I have to teach you, suppose a 33-year-old male suddenly develops chest pain in the middle of the night. फैमिली वाला बोलता है अरे छाती दुख रहा है, कुछ नहीं, तू बाम लगा ले, ओके, तू विक्स लगा ले, and then it happens to be a heart attack, so no balm and Vicks will work. And if it is heart attack, तो सीधा फोटो दीवार पे हार और अगरबत्ती के साथ, बुरी बात है. So it is very important for us to identify heart attack. It is very important for us to know how the heart functions. It is very important for us to know what is the structure and how is the functioning of heart taking place in our body. So yes, my dear students, we are back here with our Yo-Yo Bio, where we are going to talk about the circulatory system in detail for this particular lecture. अब ये लेक्चर भी काफी लंबा होगा बेटा. Stay tuned and stay focused for this particular lecture so that you understand the basics of heart. And yes, let me tell you, whatever I am going to teach you is from school section point of view. So college section students, you all wait. I am going to prepare high level lectures for you, and medical students, I'll try to prepare much more higher lectures for you. But this lecture is specifically for school section, where we are going to discuss the basics of circulatory system. So let's quickly begin with this. Circulatory system का basic में what we are supposed to know is कि it is consisting of the most important component called as blood. Because blood gets circulated from one part of the body to another. अब blood के ना दो components होते हैं, दो part होते हैं. उसका जो solid वाला part है ना, उसको बोलने का corpuscles. और ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, उसको बोलने का प्लाज्मा. प्लाज्मा बहुत जरूरी है. ओके फाइन. सो कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा. कॉर्पसल्स इज द सॉलिड पार्ट एंड प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड. अब कॉर्पसल्स में हमारे ब्लड के अंदर कौन से कॉर्पसल्स यानी कौन से सेल्स है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्पसल्स इज सेल्स. Okay, so the first type of cell that we have is RBC. The second important type of cell that we have is called WBC. And the third important type of cells that we have is called as platelets. RBC stands for red blood cells. WBC will be white blood cells. And platelets will be platelets only. वो थोड़ी short form है, ध्यान देने का ना बेटा. Okay. Fine. Now, RBCs are also called as erythrocytes. WBCs are also called as leukocytes. And platelets are also called as thrombocytes. RBCs are responsible for carrying oxygen from one part of the body to another. So they are oxygen carrier because RBC के अंदर hemoglobin होता है बेटा. WBC will fight with germs. So it fights with germs. And platelets are responsible for blood clotting. See, so WBC कैसे ना, WBC is like पुलिस वाला. ओके, बाहर का कोई भी दुश्मन आएगा ना तो उसको टपली मारेगा. टपली नहीं मारेगा, इट विल फाइट विद इट. बेटा बैड लैंग्वेज, प्लीज पे अटेंशन. ओके, व्हेयरएज द प्लेटलेट्स आर रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. जब भी हमको ज्यादा ब्लीडिंग होता है ना तो हमारा खून जम जाता है,
okay, so that we don't lose excessive quantity of blood. That process is called as blood clotting, and blood clotting is carried out by platelets. Plasma is responsible, plasma is the liquid portion of the blood, so I'll write here liquid part. This liquid part is responsible for transporting oxygen, carbon dioxide, food and different nitrogenous waste. So plasma will transport oxygen, carbon dioxide, food and nitrogenous waste from one part of the body to another. Chalo, moving on. Now for any effective circulatory system we require three things. It is as good as circulation means transports. That's why this topic is also called as a transportation. अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तेरे बिल्डिंग में ओके हर फ्लैट में जो पानी सप्लाई किया जाता है, अब वो पानी सप्लाई करने के लिए अल्टीमेटली तीन चीजों की जरूरत है. नंबर वन, यू नीड टू हैव अ मोटर पंप जो पानी को पुश करेगा हर फ्लैट्स की तरफ. नंबर टू, यू नीड टू हैव पाइपलाइन जो पानी को हर फ्लैट में सप्लाई करेगा बेटा. एंड नंबर थ्री, अगर ये पाइपलाइन फूट गया है, इफ द पाइपलाइन इज डैमेज्ड, then you need some cementing material so as to repair it. Similarly, my dear friends, for effective circulatory system, what we need is number one, a pumping organ. Pumping organ. Gun, goli mare. Okay, right. Next, moving on. Then what we need is a network of tubes. And third, what we need is a system so as to repair the damage which is taking place in the pipeline. अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे बिल्डिंग में मोटर पंप होता है, वैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में द पंपिंग ऑर्गन इज नथिंग बट हार्ट. द नेटवर्क ऑफ ट्यूब रिफर्स टू व्हाट? बीवी. बीवी मतलब सर मेरी बीवी, बीवी मतलब औरत नहीं, वाइफ नहीं. बीवी मींस ब्लड वेसल्स. बेटा मजाक मत करो, लेक्चर पे ध्यान दो, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है. सर शुरुआत किसने किया मजाक की? तूने, मैंने नहीं. ओके चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट, टू रिपेयर द डैमेज. अब कोई भी डैमेज होगा ना ब्लड वेसल्स में तो उसको रिपेयर करने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का है. So my dear students, now from this point onwards I am going to teach you first heart in detail, उसके बाद blood vessels in detail, उसके बाद platelets in detail. So अब हमारे टॉपिक का गाइडलाइन ये रहेगा, पहले हार्ट सिखाएगा तेरे को डिटेल में, उसके बाद ब्लड वेसल्स सिखाएगा डिटेल में, और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में तुझे डिटेल में सिखाऊंगा बेटा. सो ये 3 पॉइंट याद रखना, ये 3 पॉइंट के अक्रॉस ही हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं. ओके चलो लेट अस क्विकली बिगिन विद द मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट. Number one, if you need to answer the definition of human heart, then always say that heart is defined as a muscular pumping organ. Heart is always defined as a muscular pumping organ. Number two, what is the shape of heart? Our heart approximately looks a triangular beta like this. Human heart is approximately triangular. Sir, ऐसा है शेप? मैंने तो मूवीज में ऐसा देखा है. ए पागल. सर पागल क्यों बोल रहा है? पागल बिकॉज इसीलिए ये जो हिंदी मूवीज में तू देखता है ना, ये हार्ट, इसको हार्ट नहीं दिल बोलता है. एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिल. दिल इज धोखा इन लर्निंग. लर्निंग में येड़ा बना रहा है, ऐसा कुछ शेप होता नहीं है. रिमेंबर आई एम अ डॉक्टर, वी हैव कट रियल बॉडीज. ओके पोस्टमार्टम में भी देखा है, रियल हार्ट सर्जरी में देखा है. हार्ट डज नॉट लुक लाइक दिस, सो फॉरगेट दिल.
दिल विल कुछ होता नहीं है, देयर इज ओनली हार्ट, ओके राइट। एंड हार्ट का शेप इज रफली ट्राइंगुलर। अब ये जो रफली ट्राइंगुलर शेप है ना, ये ऊपर वाला पार्ट इसका बेस है और नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट है ना, ये इसका अपेक्स है। सो शेप ऑफ द हार्ट में आई विल मेंशन दैट दिल इज आल्सो धोखा इन लव, रिमेंबर ओके राइट। शेप ऑफ द हार्ट में रिमेंबर इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। And in this roughly triangular shape, what do you find? The base is upwards and the apex is pointing downwards and slightly to the left. Yani I am taking this out, heart. I am placing it in my chest. Here it goes. So इस triangle का base ऊपर की तरफ है और उसका अपेक्स नीचे की तरफ है और थोड़ा मेरा लेफ्ट साइड की तरफ है। ये मेरा लेफ्ट है ना बेटा, ओके। सो द अपेक्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, यानी अपेक्स इज नॉट पॉइंटिंग स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये याद रखना, ओके राइट। तू सुनते जा ये लेक्चर ध्यान से, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारे अफवाह जो मार्केट में है ना दिल को लेकर, वो सबको उड़ा देगा, हम गोली मार देगा। ध्यान देते जा, मस्त ऑर्गन है बेटा, ओके राइट। सो द बेस इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड द अपेक्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट, दैट इज द शेप ऑफ द हार्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। Size of the heart. The size of the heart is equal to one's own fist. Okay? किसी के हार्ट का साइज कितना होगा, उसके हार्ट का साइज उतना ही होगा जितना उसके क्लोज्ड और यू कैन से हाई-फाई लैंग्वेज में क्लेंच्ड फिस्ट, जितना उसका बंद मुट्ठी का साइज होगा ना, उतना ही उसके हार्ट का साइज होगा। लोग बोलते हैं ना, अरे यार इसका दिल बहुत बड़ा है, तो उसकी मुट्ठी भी बहुत बड़ी होगी। सर आपका दिल कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। दिस इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ माई हार्ट। द साइज ऑफ योर हार्ट इज इक्वल टू योर ओन फिस्ट। यू डोंट बिलीव? काट के देख अपना चेस्ट, पता चलेगा। छोटा छोटा बात के लिए क्या चेस्ट काटने का बेटा, नॉलेज है, ध्यान देने का ना। टीचर इज टीचिंग, पे अटेंशन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके राइट। सो द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फिस्ट, भूलने का नहीं। नेक्स्ट, location or position of heart. Our heart is present inside the thoracic cavity. क्या सर? जुरासिक? जुरासिक नहीं, thoracic cavity. thoracic cavity का simple meaning is chest. Remember that. Our heart is present inside the chest. It is present inside the thoracic cavity in a space. In a space called mediastinum. Exactly at the center, exactly in the middle, exactly in the middle, in between the two lungs. In between the two lungs. Last point, where the apex of the heart, you remember apex, the tip part, this, the apex is slightly tilted towards the left, slightly tilted towards the left. अब मेरी बात ध्यान से सुना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को क्या लगता है मालूम है, मैक्सिमम एरिया में लोगों को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, दिल इधर होता है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है रे पागल। ये सब बेवकूफी होता है। रियल नॉलेज ये है, हमारा हार्ट एग्जैक्टली चेस्ट के सेंटर में। देख पहली बात तो ये समझ ले, अपने जो चेस्ट के अंदर जो खोखला हॉलो स्पेस है ना, उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। सो हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, इनसाइड माय चेस्ट। जिस पोजीशन में जहां हार्ट बैठा हुआ है ना, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। सो थोरैसिक कैविटी, छाती के अंदर तो इतना सारा जगह है, ओके पर जहां पर हार्ट प्रेजेंट है ना, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। एंड हार्ट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर, एकदम बीचों बीच में होता है, दो लंग्स के बीच में। अगर तू बोलेगा हार्ट लेफ्ट साइड पे है,
तो अपने पास दो लंग्स है ना, तो राइट लंग इधर आया तो लेफ्ट लंग क्या बाहर आएगा क्या? दो लंग्स के बीच में है। लोग बोलते हैं हार्ट इधर है, गलत बेटा। हार्ट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी हार्ट का जो अपेक्स है ना वो थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। गेट दैट पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पता ही नहीं होता। यू सी मूवीज एंड सीरियल्स एंड ऑल दोस, ओके राइट, ऐसा लेफ्ट साइड पे गोली मारता है, उसको बोलता है हार्ट में गोली। अरे लेफ्ट साइड पे गोली मारा, लेफ्ट लंग्स में गोली गया उसके, उसका हार्ट इधर है सेंटर में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूवीज ये सब हमको बेवकूफ बनाता है, एड़ा बनाता है। मूवीज में सॉन्ग भी है ना, वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ आई डोंट रिमेंबर द मूवी का नेम, कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन, क्रिश का शायद कोई मूवी, क्रिश का कोई पार्ट था। शी इज सिंगिंग, दिल ये तो बता कहाँ था छुपा, टेलर कहाँ था छुपा? आई एम छुपा इनसाइड द thoracic cavity in a space called as mediastinum, exactly at the center in between the two lungs, and my apex is pointing slightly downwards and to the left. सुनते बराबर सब लोग 180 हो जाएगा। 180 मतलब फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा तगड़ा बायो बोलता है ये। रिमेंबर दैट, ओके। चलो मूविंग ऑन। सो दैट्स द लोकेशन ऑफ हार्ट बेटा। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, heart sounds. Our heart is making sound, okay, right? हार्ट से कौन सा साउंड आता है? सर मेरे को मालूम है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं बिना देखे बोल देगा। हार्ट साउंड्स आर धक धक, गलत। ये भी मार्केट में अफवाह है, ओके। ये भी एक तरह का इग्नोरेंस है जो लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि दिल धक धक करता है, गलत। हार्ट साउंड्स आर नॉट धक धक, ओके। हार्ट साउंड्स आर लब डब। एट टाइम्स इसका स्पेलिंग में ना यू विल फाइंड लब डब ऑल्सो। दोनों की स्पेलिंग चलता है बेटा, ओके। स्पेलिंग छोड़, साउंड पे ध्यान दे बेटा। तो लोग बोलते हैं ना दिल धक धक करता है, जब कोई किसी का हार्ट बीट सुनता है बोलता है क्या आवाज आ रहा है? धक 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 धक। गलत है बेटा, धक धक आवाज नहीं आता है। हार्ट साउंड्स आर लब्ड अप। See, when we make use of stethoscope and when we listen to these sounds on the patient's chest, it typically makes noise as, listen, lub dub, 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 lub dub. That is heart sound. In movies we make songs also, धक धक करने लगा। अरे नहीं, गलत। Change it, become biological. लब डब करने लगा, गलत नॉलेज को फैलाओ मत बेटा। रिमेंबर दैट्स यो बायो, ओके। सो हार्ट साउंड्स आर नॉट धक धक, हार्ट साउंड्स आर लब डब। नेक्स्ट, हार्ट रेट। हार्ट रेट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 minute। सो ह्यूमन नॉर्मल हार्ट रेट इज 60 to 100 BPM. BPM stands for beats per minute. ये याद कर लो बच्चों। Our heart beats 60 to 100 times in 1 minute. 60 से लेके 100 के बीच में कितना भी हो सकता है। Now यहाँ पर भी people say that normal heart rate is 72 beats per minute. No, nobody has got a fixed heart rate. तेरा 72 हो सकता है, यानी तेरा हार्ट 1 मिनट में 72 times it is contracting and relaxing. So my heart can undergo contraction and relaxation 73 times, 74 times, 75 times, कुछ भी हो सकता है, पर 60 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए, ये उसका नॉर्मल वैल्यू है। सो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये याद रखो। कभी इमेजिन किया है कि हार्ट रेट ऑफ माइस, चूहा, और हार्ट रेट ऑफ एलिफेंट, ये दोनों में से किसका हार्ट रेट ज्यादा होगा? सर सिंपल लॉजिक, एलिफेंट का। गलत, उल्टा है। एनिमल का बॉडी साइज जितना छोटा रहता है ना उतना उसका हार्ट रेट फास्ट होता है। चूहे का हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली इज अराउंड 300 to 500 बीट्स पर मिनट। एलिफेंट का हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली इट इज अराउंड 10 to 20 बीट्स पर मिनट।
ओके जितना बड़ा साइज होगा ना बॉडी का, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को उतना टाइम लगता है. ओके सो रिमेंबर दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एग्जाम में ये सब लिखना नहीं. मैं मेरे एडवांस्ड लेक्चर्स में ना व्हेन कॉलेज में यू विल कम अप, ओके आई एम गोइंग टू टॉक मेनी मोर पॉइंट्स बियॉन्ड दिस बेटा. ओके चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट देन अदर देन हार्ट रेट, then next what we will remember is covering of the heart. Covering of the heart is called as pericardium. Suppose for example you cut open your friend's chest, काट दे उसका chest, उसका heart निकाल बाहर, take the heart out, it's beating. What's the sound? The sound is that no dub 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 dub, मार दिया, बंद हो गया. अब ये जो हार्ट है ना, इमेजिन ये हार्ट नहीं, दिस इज लाइक अ बॉइल्ड पोटैटो. एक आलू कैसे छीलते हैं हम लोग, वैसे इसको छील दो तो हार्ट का जो कवरिंग है ना निकाल रहा. यू सी दिस कवरिंग, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. अपने हार्ट के आजू बाजू में जो लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके people so easily in Hindi movies, a hero says to the heroine or heroine says to the hero कि तुम मेरे दिल में उतर आए हो, you have traveled in my heart. How come so easily you have traveled? Okay, if you are traveling within my body, पहला skin आएगा, muscles आएगा, rib cage आएगा, pericardium आएगा, फिर heart आएगा. इतना layers को पार करके अंदर आ गया तुम, हलवा है क्या? That's bio, remember, हाँ? Okay, so the covering of the heart is called as pericardium बेटा. Next, human heart internally is divided into 4 chambers. सर चेंबर मतलब, चेंबर का मतलब कंपार्टमेंट. So human heart internally it is divided into 4 chambers. It is divided into 4 compartments. Let's see what it is. So let us say this box represents human heart बेटा. For example, और ये उसके अंदर के 4 कंपार्टमेंट. यानी ह्यूमन हार्ट को अगर कट करके देखेंगे ना, सपोज दिस इज द हार्ट, उसको कट करोगे ना तो उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट है. जैसे तू अपना कबोर्ड खोलता है ना, वार्डरोब खोलता है ना, तो उसमें शेल्फ रहता है ना, शेल्फ, वैसे हार्ट में ना ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अपने हार्ट के अंदर. ओके राइट. ऊपर के कंपार्टमेंट्स को एट्रियम बोलते हैं बेटा. सुनो ध्यान से. upper 2 chambers are called as atria, or you can also call it as atrium. सबसे पहले एक छोटा सा ग्रामर बेटा. एट्रियम सिंगुलर है और एट्रिया प्लूरल है. So when I am referring to both chambers, I will say these are 2 atria. और जब मैं एक बार में एक की बात कर रहा हूं तो I will say this is 1 atrium. So remember that. Next, atria or atrium is also called as auricle. ये उसका एक और नाम है बेटा. So the upper chamber is called as auricle or atria. Next, atria is thin walled, पतला रहता है बेटा. And atria is called as receiving chamber. Why they are called as receiving chamber? Because atria के अंदर blood आके भरता है. The blood gets filled up in the atria. Then depending upon the side, we have right atrium and we have left atrium beta. Okay, right? Next, moving on. The lower 2 chamber of heart are called as ventricles. So the lower chambers are called as ventricles. Okay, ventricles are comparatively thick walled. And ventricles are called as distributing chambers. Okay, right? Now, depending upon the side, you will have right ventricle and the left ventricle.
Now why ventricles are called as distributing chambers? Because ventricle से blood बाहर आता है बेटा. So I'll tell you how this works. Okay, you imagine the blood enters, दो compartment है. So जिसमें blood आके भरता है ना, that upper chamber is called as atrium. फिर एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन मारता है ना तो ब्लड वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है. सो वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, एट्रिया इज कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर. सो एट्रिया रिसीव्स, gives it to the ventricle distributes. Okay, so remember atria is receiving chamber, ventricle is distributing chamber. ventricle उड़ाते रहे, उड़ाने दे, उसका मर्जी, अपने को क्या. मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब ये सब का फुल फॉर्म देख लेते बेटा. 4 फुल फॉर्म तुमको अच्छे से आना चाहिए. ओके, पहला RA, दूसरा LA, तीसरा RV और लास्ट LV. RA मीन्स राइट एट्रियम, LA मीन्स लेफ्ट एट्रियम. चल अभी तू दिमाग लगा और तू आंसर कर बेटा. RV मीन्स राइट वेंट्रिकल and LV means left ventricle. Clear on this? Next, partition of heart. Same diagram we are taking it again beta. Now what you have to understand is in terms of partition. ये देख, ये हार्ट का राइट एट्रियम है, ये उसका लेफ्ट एट्रियम है. सो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये जो दीवार है ना, you see this partition? This is called as interatrial septum. Interatrial सेप्टम. सेप्टम मीन्स पार्टीशन. वैसे ही बेटा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है ये वाला, जैसे समझो ये कमरा, ये एंटायर रूम, ठीक है. अब मैंने ना यहाँ पे एक पार्टीशन बनाया जिसके वजह से ऊपर की तरफ 2 कंपार्टमेंट बन गए. तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम. फिर मैंने वो पार्टीशन को नीचे तक लिया जिसके वजह से यहाँ पर भी 2 कंपार्टमेंट बन गए. सो दिस नीचे वाला पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. फिर मैं एक ऐसे पार्टीशन करूंगा तब जाके 4 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे बेटा. फिलहाल के लिए ऊपर के 2 पार्टीशन का नाम याद रखो. सो दिस अपर पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम एंड दिस लोअर पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सेप्टम शॉर्ट में लिखा बेटा, उतना तू समझ के ले बेटा. ओके, सो इंटरएट्रियल सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, चलो अभी बेटा तुम फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको आगे सिखाता हूं. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन? ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट बेटा. The same partition वाला point we will continue.
Okay, so now we have seen interatrial septum and interventricular septum, which divides our heart into left and right side. Now let us see the horizontal partition which will divide the heart into the upper and the lower chamber. Okay, look here very carefully. So let us say, suppose this box represents heart. Okay, अच्छा, now this is right atrium and this is left atrium. So ये बीच में ये क्या होगा बेटा? This is interatrial septum. Okay, next. If I say this is right ventricle and this is left ventricle, तो ये जो partition होगा, this is interventricular septum. Okay. Now, in between the right atrium and the right ventricle, okay, there we have three leaf-like structure. सर मर्सिडीज बनाया? मर्सिडीज नहीं बनाया बेटा. ओके, वो तीन फ्लैप है ऐसा, वो तीन फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसा मर्सिडीज जैसा साइन आ जाता है. और लेफ्ट साइड में ना यहाँ पर दो फ्लैप है बेटा, एक और दो. सो अब ये जो बनाया है ना सर ने, दीज आर कॉल्ड एज वैल्व्स. ओके, नाउ व्हाट आर वैल्व्स? पॉइंट नंबर 1, वैल्व्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. नंबर 2, उसका काम क्या है? वैल्व्स प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड. valves prevents backflow of blood. ओके, अच्छा, अब ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूं बेटा, जो स्कूल सेक्शन में नहीं है, कॉलेज सेक्शन में और एडवांस लेक्चर्स में तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, विच ग्रेजुअली वी विल स्टेप अप विद अपकमिंग लेक्चर्स बेटा. बट फ्रॉम स्कूल सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, that is called as a tricuspid valve. और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में जो वाल्व है ना, that is called as bicuspid valve. अब इसको समझ के लिए देख, वाल्व क्या होता है? वाल्व ना, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है, तो लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ना, तो ये वाल्व ओपन होता है ऐसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दो कस्प है ना, इसलिए बाइकस्पिड, 1 2, तो ब्लड नीचे गया. राइट साइड पे ऐसा तीन कस्प है, यानी तीन फ्लैप है, तीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड. ये समझा बेटा? दूसरी बात, एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ गया ना, ये वाल्व खुला, ब्लड नीचे आया, फिर ये वाल्व बंद हो जाता है, ताकि ये ब्लड वापस प्रीवियस चेंबर में नहीं जाएगा. इसीलिए वी आर राइटिंग valve का function is it prevents backflow of blood, or you can say beta, valve allows the blood to flow only in forward direction. The blood cannot come reverse. That means once the blood has come from right atrium to right ventricle, एक बार नीचे आ गया तो ब्लड वापस ऊपर नहीं जाएगा. एक बार ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो ब्लड वापस ऊपर नहीं आएगा. दूसरा टेक्निक याद रखो, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट, इसका बेसिक ट्रिक देखो कैसा है. यू हैव सीन योर अवस्थी सर, आई एम लेफ्टी. हिंदी में एक मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल, राइट? सो बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट, बाएं, बाएं इज लेफ्ट. बोलते हैं ना बाएं और दाएं, दाहिने तरफ और बाएं तरफ. हिंदी में बाएं हाथ का खेल, बायोलॉजी अपने बाएं हाथ का खेल. रिमेंबर, ओके? सो बाएं इज लेफ्ट. और यू कैन रिमेंबर, इफ यू आर राइट इन योर लाइफ, then you should always try. अगर तू जिंदगी में सही है तो कितना भी तू नाकाम हो या फिर कितना भी तू फेल हो जाए अपने लाइफ में, you should always try again. Okay? So if you are right in your life, you should always try. So right side पे tricuspid valve, यानी तीन valve है, okay? तीन flap है वहाँ पे, okay? और left side पे सिर्फ दो flap है, that is bicuspid valve. ये extra point है बेटा, syllabus में नहीं है, इसको याद रखो. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. सो अभी हार्ट का है ना, टोटली अपने को पूरा का पूरा पार्टीशन पता चल गया. ओके, ये पार्टीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. विद फुल फॉर्म, हाँ बेटा? ओके, लुक हियर. सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल
RA means right atrium, LA means left atrium, and this is interatrial septum. RV means right ventricle, LV means left ventricle, and this partition is interventricular septum. नेक्स्ट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर जो वाल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 फ्लैप होगा, और यहां पर जो वाल्व है दैट इज बाइकस्पिड वाल्व यानी 2 फ्लैप होगा. सो इस हिसाब से हार्ट के चारों चेंबर्स फिनिश हो जाते हैं. ओके, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी विल लर्न नेक्स्ट इज कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट चेंबर. अब ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पे अटेंशन. व्हाट इज दिस? बॉक्स? नहीं, दिस इज नॉट अ बॉक्स, दिस इज ह्यूमन हार्ट. फॉर एग्जाम्पल, कब से यही बात कर रहे हैं ना हम लोग. सो फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन हार्ट है. ओके, हाउ मेनी चेंबर्स? 4 चेंबर. ओके, upper chamber right atrium, left atrium, lower chamber right ventricle, left ventricle. अब राइट एट्रियम में है ना 2 ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आते हैं बेटा. ओके, this is called as SVC, superior vena cava, and this is called as IVC, inferior vena cava. Notice what I have told you, कि they bring the blood into the right atrium. Next, left atrium में the blood is brought by 4 tiny vessels. 1, 2, 3, 4. You can see these 4 pipeline beta. Okay, so left atrium में the blood is brought by these 4 tiny blood vessels. Okay, these are called as 4 pulmonary veins. 4 pulmonary veins. I will write down the spelling. सुनो ध्यान से. जहाँ पर pulmonary का मतलब होता है lungs. So this blood is coming from lungs beta. Next, right ventricle से the blood is pushed into another blood vessel that is called as pulmonary artery. I repeat, pulmonary artery. And left ventricle से the blood comes out through a large blood vessel which is called as aorta. Remember what I am telling you, राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है थ्रू एओर्टा. नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये ब्लड नीचे की तरफ नहीं आता है, रादर ये ऊपर की तरफ आता है. जब एक्चुअल डायग्राम सिखाऊंगा ना, इट विल बिकम मोर क्लियर, बट फॉर नाउ स्टूडेंट्स जस्ट फोकस ऑन कनेक्शन. कनेक्शन में क्या याद रखना है कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अंदर आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू. राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अंदर आ रहा है थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स. राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा थ्रू एओर्टा. फुल फॉर्म वी विल पुट अप क्विकली. एसवीसी, superior vena cava. Superior vena cava is a big blood vessel which brings the blood from the upper half of the body, and this blood vessels drains the upper half of the body का blood into the heart. Next, IVC is inferior vena cava. Inferior vena cava brings the blood from the lower half of the body into the heart. So उसका full form लिख देते हैं. Inferior vena cava. Okay, next PA, pulmonary artery.
सो नीडलेस टू से पीवी क्या होगा, पल्मोनरी वेन, जहां पर पल्मोनरी का मीनिंग इज रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोनरी का मीनिंग इज इट इज रिलेटेड टू लंग्स। सो अब बेटा सबसे पहले हार्ट का है ना ये कनेक्शंस बाय हार्ट कर लो अच्छे से, ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दीज कनेक्शंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर लेक्चर। आई रिपीट वंस अगेन, हार्ट को काट के देखेगा तो अंदर 4 चेंबर है बेटा, ओके। राइट एट्रियम जो है उसमें ब्लड कौन से 2 पाइपलाइन लेके आते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें ब्लड आता है through 4 blood vessels, okay, these 4 blood vessels are called as pulmonary veins। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है with the help of which blood vessel, that is pulmonary artery। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है with the help of aorta। so remember these are the 4 main connections of the heart। चारों चेंबर का मेन जो कनेक्शन है ना वो इस डायग्राम में कवर हो रहा है, इसको अच्छे से याद कर लो बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब मैं तुझे इसका सर्कुलेशन सिखाता हूं कि हाउ ब्लड ट्रैवल्स फ्रॉम वन चेंबर ऑफ द हार्ट इनटू अनदर। द सर्कुलेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन के लिए सेम डायग्राम वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट वंस अगेन बेटा। Let us say this box represents a human heart। अब तू है ना मुझे नेमिंग बताएगा फटाफट। RA stands for right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, ठीक है। अब ये कनेक्शंस वाले पॉइंट अप्लाई करते हैं बेटा। पहले राइट एट्रियम से चालू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन? बिकॉज ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन बीट, ओके। इसका डिटेल्ड मीनिंग लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। देयर आर 2 डिफरेंट सर्किट नेटवर्क थ्रू विच द ब्लड ट्रैवल्स। पहला वाला नेटवर्क देखो कैसा है, ओके। अब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, कहां से आएगा? ऊपर की तरफ से ब्लड कौन लेके आ रहा है? द ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना केवा, एंड द ब्लड इज ब्रॉट फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अनदर ब्लड वेसल व्हिच इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा, ओके। रिमेंबर दैट। सो राइट एट्रियम में ब्लड आया थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड थ्रू इंफीरियर वेना केवा। अब इसमें है ना एक सिंपल सा मैं तुझे एक रूल और बताता हूं बेटा, okay, remember that in human heart this is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle। the right side of the human heart contains a deoxygenated blood। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी इस खून में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। नेक्स्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, ओके, राइट। आई रिमेंबर अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। Once in a small religious gathering, okay, right, prasad distribution was going on। पूजा हो गया था, प्रसाद बांटा जा रहा था। So you know Avasthi sir is lefty, so Avasthi sir offered left hand। So the person who was distributing प्रसाद ना वो डांट दिया, बोला हाँ लेफ्ट हाथ में प्रसाद नहीं लेने का। I asked him why। See, I am a teacher, I want to know, so I told him why, give reason for 2 months। So he said left side pure नहीं होता है। Then I taught him this। You see, I am a doctor, I am a biology professor, okay, right। तुम बोलता है ये प्योर और इम्प्योर, कभी भी घर में गृह प्रवेश करेगा तो लेफ्ट पैर पहला नहीं रखने का, राइट पैर रखने का, लेफ्ट पैर इम्प्योर होता है, गलत है।
ये तो इंसान ने ये सारी भावनाएं बनाई है, बनाने वाले ने इसका उल्टा बनाया। इफ यू ओपन अप द ह्यूमन हार्ट यू विल फाइंड दैट लेफ्ट साइड में देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड, एंड राइट साइड में देयर इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज लाइक इम्प्योर ब्लड। उसको जब ये कहानी बोला तो उड़ गया, राइट? और फिर उसके बाद से मेरे को मिला ही नहीं वापस। रिमेंबर बायो बहुत अमेजिंग है बेटा, ओके राइट? चलो ये लेफ्ट राइट करो मत, इतना बेसिक याद रखो। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता है बेटा, ओके? अब ये रूल को इधर अप्लाई करते हैं। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड लेके आएगा ना राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड है, इंफीरियर वेना केवा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया। फिर राइट एट्रियम क्या करता है ना, ओके, अपने ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन कर देगा। वो जो 3 फ्लैप थे ना, गया नीचे, ये गया नीचे, ये गया नीचे, सो राइट एट्रियम से ब्लड अब जाएगा राइट वेंट्रिकल में। सो ब्लड है ना राइट वेंट्रिकल में गया। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड भर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या ये ब्लड मेरे को बॉडी के हर सेल को देना चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए राइट वेंट्रिकल क्या करता है ना, राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को सबसे पहले कहां भेजेगा, किसके पास भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। अब लंग्स क्या करेगा ना, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उस ब्लड में ऑक्सीजन डाल देगा बेटा। सो वी से दैट लंग्स विल कन्वर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से रिटर्न कर दिया जाता है हार्ट को इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। यहां पढ़ा था ना बेटा, पल्मोनरी मींस लंग्स ना, ओके? तो अब लेफ्ट साइड पे देखो पॉइंट कैसा एकदम प्रॉपरली मैच हो रहा है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्यों? क्योंकि वहां से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी मतलब लंग्स, और लंग्स के पास से आ रहा है तो ऑक्सीजन लेके आएगा ना बेटा। अब इस तरह से ब्लड घूमते रहता है बेटा, ये एक सर्कुलेशन हुआ। दिस इज वन सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जहां ब्लड पहले हार्ट में आया, हार्ट के राइट एट्रियम में आया, और क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड था तो लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आया। सो ये पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। सो ये एक सर्किट है, ये एक फ्लो है। अब इसके बाद क्या होगा वो देखो, लेफ्ट एट्रियम ना फिर ब्लड को दे देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे? बाइकस्पिड वाल्व को ओपन करेगा, इसके पास 2 फ्लैप है ना, उसको ओपन करेगा तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, फिर ये बंद हो जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप बाहर निकलता है जिसको एओर्टा बोलते हैं। वो पाइप ऊपर की तरफ निकलता है एक्चुअल डायग्राम में, पर मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं यहाँ पे, ओनली फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, ओके? सो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब वो ब्लड, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब वो ब्लड जा रहा है कहां पे? वो ब्लड जा रहा है एओर्टा में। Then aorta will supply this oxygenated blood to different parts of the body. So aorta is supplying this oxygenated blood to different parts of the body. अब बॉडी का हर पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अल्टीमेटली उसमें बॉडी के सेल्स होंगे। सो बॉडी का हर सेल क्या करेगा, ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेगा और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो कचरा बना है, वो ब्लड में डाल देगा। तो अब ये जो ब्लड जो बॉडी के पास से अब निकल रहा है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा बेटा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इट एंटर्स इनटू इंफीरियर वेना केवा व्हिच ड्रेन्स इट इनटू राइट एट्रियम, एंड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी इट गोज इनटू सुपीरियर वेना केवा व्हिच कम्स इनटू द राइट एट्रियम। अब ये सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, चालू हुआ हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से कहां गया, बॉडी में, और बॉडी से वापस हार्ट में। सो ये एक अलग पाथवे बेटा, ये वाला लंग्स का एक अलग सर्किट था और बॉडी का एक अलग सर्किट है। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके? अब ये पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। डबल सर्कुलेशन में जो पहला सर्कुलेशन हमने पढ़ा ना, जो लंग्स में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, और उसके लिए बेटा देखो ये रूल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में तूने क्या देखा बेटा कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, किधर लाया, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में लाया। फिर राइट एट्रियम ने उसको ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू किधर दे दिया, राइट वेंट्रिकल के पास। फिर राइट वेंट्रिकल ने उसको पल्मोनरी आर्टरी में डाल दिया बेटा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है ना। ओके, आई विल मेंशन इट ओवर हियर, इट वुड बी बेटर। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी में गया और पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स के पास लेके गया। सो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन दिस ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट एंड इट इज कमिंग थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो ये सर्कुलेशन में मेन किसके थ्रू हो रहा है सारा ये सर्कुलेशन, लंग्स के थ्रू। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Why it is called as systemic circulation? Because here the blood is supplied to different systems of the body, जैसे digestive system, excretory system, okay, reproductive system. So it is supplied to different system of the body. यहीं से start होगा ये. So this circulation begins from left atrium. Left atrium will push the oxygenated blood through bicuspid valve into the left ventricle. The left ventricle will push this blood into aorta. ये वाला सेक्शन ये अच्छे से याद रहना चाहिए बेटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा। एओर्टा will supply this oxygenated blood to different parts of the body. Body will use the oxygen and dump carbon dioxide into it. So now the blood becomes a deoxygenated blood. And this deoxygenated blood is then pushed into superior vena cava and inferior vena cava. And superior vena cava and inferior vena cava are bringing the blood back into right atrium. So यहाँ पे कैसा हुआ ना कि it started from heart. Heart के left atrium से चालू हुआ, वहां से it went to different systems of the body. That's why it is called as systemic circulation. और वापस से heart में आया. Okay? So human circulation is called as double circulation because it shows pulmonary circulation and systemic circulation. चलो next important point, next important technique बेटा. Okay? Remember the sequence of Param. Param में P stands for Pisces. Pisces का meaning is fish. A stands for amphibia, R for reptilia or you can call it as reptiles, A for aves, aves का meaning is birds, and M for mammals. We belong to the category of mammals. Aves and mammals have 4-chambered heart. Fish will have only 2-chambered heart. Amphibians and reptiles have 3-chambered heart. बाय हार्ट का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश के हार्ट के अंदर सिर्फ 2 चेंबर होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट के अंदर 3 चेंबर्स होते हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल जो है ना, crocodile is exception. Why it is an exception? Because all reptiles have 3-chambered heart, but crocodile has a 4-chambered heart. Okay. Next, birds और mammals में circulation is called as a double circulation.
और फिश में सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. एंड फिशेस में वॉट एवर ऑक्सीजन दे हैव टू एक्सचेंज, द एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस गिल्स. जैसे हमारे पास लंग्स है ना, वैसे फिशेस में द मेन टिश्यू इज गिल्स. ओके, सो रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ परम, जिसमें से एव्स और मैमल्स के पास 4 चेम्बर हार्ट, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर हार्ट, जहां पर रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल व्हिच हैज अ 4 चेम्बर हार्ट, देन फिश व्हिच शोज अ 2 चेम्बर हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, एंड हियर इट इज डबल सर्कुलेशन. अंडरस्टूड दिस मच बेटा? ओके, अब पूरा ब्लड फ्लो एक बार रिवाइज करें तो देखो कैसा होता है. ये वाला डायग्राम और ये वाला रूल, ये तुमको अच्छे से बाय हार्ट करना है बेटा. सो ब्लड कम्स फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा इनटू राइट एट्रियम. उसी टाइम पे पल्मोनरी वेन्स से है ना द ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. फिर राइट एट्रियम ब्लड को है ना नीचे डाल देगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम ब्लड को नीचे डाल देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से द ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरी, वहां से लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस से थ्रू पल्मोनरी वेन्स इट कम्स ओवर हियर. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इट कम्स बैक थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. गेटिंग इट बेटर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन? ऑल राइट बच्चों. ओके, सो विल डू वन थिंग, वी विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर. आई विल रिकमेंड कि तुम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स का ना नोट्स बनाओ अच्छे से, और स्पेसिफिकली ये कनेक्शंस और ये वाला पार्ट अच्छे से मेमोराइज कर लो बेटा. ओके, यहाँ पे हमने आज हार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. इन दी अपकमिंग कंटिन्यूड वीडियो ऑफ दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स. आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स इन डिटेल. I will be talking about blood pressure. I will be talking about lymph in detail beta. But till then I hope whatever I have taught you was direct दिल से, दिल अच्छा दिल होता ही है, was direct heart से बेटा. Remember that? Okay? और heart से related जो जो सारे नए points और take home messages मिले हैं तुमको, if you are benefiting from this lecture, you go down to the comment section and comment yo-yo bio. Okay? So read bio, bleed bio, loved up bio, धक धक bio, no धक धक bio, loved up bio. Take care. Thank you बच्चों.